So in last class we were discussing sporopollenin. So remember, sporopollenin is modified or oxidized polymer of lipid or keratin. Note, sporopollenin forms exine of the pollen grain. Sporopollenin form the exine of the pollen grain, and exine is further divided into saxine and naxine. And saxine is of three layered structure: basal layer, baculum layer, and tectum layer. Baculum and tectum layer take part in sculpturing exine of pollen grain. आप देखते होंगे पॉलन ग्रेन का जो फिगर आपके बुक में दिया हुआ है एनसीईआरटी में, तो आप देखिएगा उसका ऊपरी सरफेस जो है वो अलग अलग डिज़ाइन का बना के दिखलाया गया है, और वो सुंदर डिज़ाइन जो आपको दिखाई देता है वो कहलाएगा स्कल्पचरिंग। इसके आधार पर, स्कल्पचरिंग के आधार पर एक साइंटिस्ट को क्लास, फैमिली, ऑर्डर, जेनस, स्पीसीज, इस सब को क्लासिफाई करने में या एक प्लांट को क्लासिफाई करने में वो मदद करता है। सो टेक पार्ट इन स्कल्पचरिंग ऑफ द pollen grain, which helps in which varies from species to species, and helps in classification of plants by taxonomists. ये सब बातें जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, ये बैकुलम लेयर, टेक्टम लेयर, ये +2 के लिए नहीं है। जो लोग टारगेट की तैयारी करते हैं उन लोगों को ये सब थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा। सेकेंड नोट फिर हम लिख रहे हैं, and note is about the callose layer. So what is callose? And callose is 1,3-beta D-glucan or glucose or glucan। याद होगा, कैलोस का लेयर होता है माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल के चारों ओर। तो एक बीटा डी ग्लूकोज का कार्बन नंबर फर्स्ट, यानी कह सकते हैं दूसरे बीटा डी ग्लूकोज के कार्बन नंबर 3 से बॉन्ड बनाएगा, इसको कहेंगे ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। इसलिए यहाँ पर ऐसा लिखा गया है। नाउ साइज ऑफ pollen grain. Size of pollen grain average size, and answer is 25 micron to 50 micron.
smallest pollen grain? Answer is Myosotis. 10 micron size. And largest pollen grain? Largest pollen grain. And answer is Mirabilis jalpa and cucurbits. Mirabilis jalpa and cucurbits. Now longest pollen grain. Longest pollen grain. Answer is Zostera. Zostera is aquatic plant or pollen grain without exine. Pollen grain without exine. Again answer is Zostera. And pollen grain of aquatic plant is especially covered with mucilaginous layer. This is aquatic plant. Aquatic plant यानी पानी में रहने वाला प्लांट, आप जानते हैं वैलिस्नेरिया, जॉस्टेरा या हार्डिला या अदर प्लांट्स जो भी है, उसमें पॉलन ग्रेन के ऊपर एक प्रोटेक्टिव म्यूसिलेजिनस लेयर होगा जो उसको पानी में सड़ने से बचा लेगा. सो रिमेंबर, पॉलन ग्रेन ऑफ एक्वेटिक प्लांट पोजेजेस म्यूसिलेजिनस कवरिंग, mucilaginous covering on exine of pollen grain. Now study of pollen grain. Study of pollen grain. Called palaenology and Indian palaenology. Indian palaenologist पीके नहीं है. Now palaenology may be aeropalaenology, geopalaenology, hydropalaenology and melitopalaenology. So remember, palaenology may be aeropalaenology, geopalaenology, hydropalaenology and the melitopalaenology. So different branches of palaenology. So in aeropalaenology, a study of pollen grains, a study of pollen grains causing allergy or hay fever, allergy and
तो hay fever plus bronchitis. An example is Congress grass or carrot grass. Congress grass or carrot grass, that is Parthenium hysterophorus. Parthenium hysterophorus. पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस भी है क्वेश्चन। देखिए पॉलन ग्रेन जब हवा में उड़ जाएगा, जिसको कहते हैं हम लोग विंड पॉलिनेशन या एनिमोफिली, तो वो पॉलन ग्रेन इतने छोटे होते हैं कि हम लोग ईजिली उसको ब्रेथ के द्वारा इनहेल कर लेते हैं, सांस के द्वारा खींच लेते हैं अंदर, या हमारे स्किन पर गिरता है जिसके कारण एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं, हे फीवर आ सकता है, या सांस की नली में जाने पर यानी ब्रोंकस में जाने पर उसमें सूजन हो सकता है, दैट इज कॉल्ड ब्रोंकाइटिस। जियोप्लानोलॉजी, जियोप्लानोलॉजी इज ओनली फॉर द fossil of pollen grains, study of fossil of pollen grains. And itroplanology for criminal investigations, and melitoplanology is a study of pollens for honey formation. So remember, मेलिटोप्लानोलॉजी में आप अलग अलग जो फ्लावर्स होते हैं उसके अलग अलग टाइप के पॉलन ग्रेन होते हैं। अब जानते हैं कि पॉलन ग्रेन और नेक्टर, हनी बी, खास करके वर्कर बी जिसको कहते हैं आप, वो सेलेक्ट करके अपने हाइव तक ले जाती है। आजकल बी पॉलन का यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है मार्केट में। आप देखेंगे तो इसका बहुत सारा प्रोडक्ट जो है मार्केट में बेचा जा रहा है। इसके लिए आपको समझना होगा केमिकल कंपोजिशन ऑफ पॉलन ग्रेन, केमिकल कंपोजिशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स, केमिकल कंपोजिशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स। So pollen grains are rich in carbohydrate, protein, lipid, minerals or ash and enzymes. So carbohydrate is maximum. Carbohydrate is maximum. So partially digested bee pollens, partially digested bee pollens are sold as tablet, syrup, capsule, etc. for running horses, running या better called racing horses,
जिसको आप रेस में इस्तेमाल करते हैं, रेसिंग हॉर्सेस एंड स्पोर्ट्स पर्सन्स और एथलीट। बॉडी में ज़्यादा ताकत लाने के लिए, ज़्यादा एनर्जी लाने के लिए पार्सली डाइजेस्टेड का मीन्स है कि जो बहुत हद तक पचाया हुआ है पॉलन ग्रेन्स हनी बी के द्वारा, उसको मार्केट में आजकल टैबलेट, कैप्सूल या सिरप या अदर फॉर्म में बेचा जा रहा है। और जो लोग ज़्यादा एनर्जी लेना चाहते हैं, जिसको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, वो लोग इसको अभी कंज्यूम कर रहे हैं, इसलिए आपको ऐसा बताया जा रहा है। नाउ लाइफ स्पैन ऑफ पॉलन ग्रेन्स, लाइफ स्पैन ऑफ पॉलन ग्रेन्स। लाइफ स्पैन ऑफ पॉलन ग्रेन्स। संबंध है कि एंथर लोब से जब पॉलन ग्रेन निकल जाएंगे और हवा में फैल जाएंगे या किसी फ्लावर के स्टिग्मा पर जाके गिरेंगे, जिसको आप कहेंगे पॉलिनेशन, कई एजेंट के द्वारा पॉलिनेशन होगा जो आपको आगे पढ़ना है, तो उसकी वायबिलिटी होती है कि वो कितने देर तक में अगर स्टिग्मा पर पहुँचे तो वो फर्टिलाइजेशन करवा सकता है। तो उसके लिए आपको देखना होगा कि हाफ लाइफ या लाइफ जो हम लोग जानते हैं केमिस्ट्री में, बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर भी हमको देखना होगा कि पॉलन ग्रेन स्पीसीज टू स्पीसीज जो सर्वाइवल कैपेसिटी है वो अलग अलग होता है। तो जैसे आप अगर सीरियल्स के लिए अगर देखिए, सीरियल्स, अब सीरियल्स में जैसे आप व्हीट के लिए देखेंगे, पैडी के लिए देखेंगे एटसेट्रा, तो 30 मिनट्स, केवल 30 मिनट, केवल 30 मिनट इसका लाइफ स्पैन होता है। यानी एक मेल फ्लावर का पॉलन ग्रेन फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा पर आधे घंटे तक में अगर गिरा तब तो उससे फर्टिलाइजेशन होगा, अन्यथा स्टिग्मा पर पहुंचने के बावजूद भी उससे क्या नहीं हो पाएगा, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिसमें मंथ तक इसका लाइफ रह जाता है। अब जैसे देखिए, अगर हम बात करते हैं सीरियल्स के अलावे सोलेनेसी फैमिली में, लेग्यूमिनेसी फैमिली में और रोजेसी फैमिली में, रोज में, इस 3 फैमिली में अगर बात करें तो इसका लाइफ स्पैन जो है ज़्यादा होता है, अप टू मंथ। महीनों तक रह जाता है ये जिंदा। यानी कि अगर ये हवा में है और 1 महीने के अंदर अगर किसी स्टिग्मा पर जाके गिरता है तब भी फर्टिलाइजेशन हो सकता है। तो इसका लाइफ स्पैन ज़्यादा है इस 3 फैमिली के मेंबर का, जिसमें पल से जाएगा लेग्यूमिनेसी में, स्पेशली सोलेनेसी आप जानते हैं ब्रिंजल की बात कर रहे हैं हम लोग, और रोज़ की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर मंथ में रहता है। आजकल क्या हो रहा है कि साइंटिस्ट, जैसे बैंक होता है ब्लड बैंक, जैसे होता है सीमेन बैंक, वैसे ही आजकल पॉलन बैंक का यूज किया जा रहा है। पॉलन ग्रेन को लिक्विड नाइट्रोजन टेम्परेचर पर स्टोर करके रखा जा रहा है ताकि उससे आर्टिफिशियली फर्टिलाइजेशन कराया जा सके, जिसको कहते हैं हम लोग इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो इसलिए पॉलेंस आर kept at liquid nitrogen temperature, liquid nitrogen temperature that is minus 196 degrees Celsius in a pollen bank for
आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन, और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आप समझ सकते हैं जैसे हम लोग टेस्ट ट्यूब बेबी पैदा करते हैं, वैसे ही यहाँ पर इस फर्टिलाइजेशन के द्वारा टेस्ट ट्यूब प्लांट पैदा किया जा सकता है। टेस्ट ट्यूब प्लांट्स पैदा किया जा सकता है इसके द्वारा। टेस्ट ट्यूब प्लांट्स अब ज़रा हम टारगेट बैच के लिए कुछ और बात करना चाहते हैं। जो स्टूडेंट आप मेडिकल का नीट मेडिकल का प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो जरा ऐसे देखिए एक फेनोमेना है जिसको आप कहते हैं निमैक फेनोमेना। कहेंगे निमैक साइंटिस्ट का नाम है। ये फेनोमेना क्या है? तो लिलिएसी फैमिली, लिलिएसी फैमिली का एक मेंबर है हाइसिंथस। अब देखिए हाइसिंथस का पॉलन ग्रेन लिया गया, हाइसिंथस पॉलन ग्रेन इन अ कल्चर मीडिया, इन अ कल्चर मीडिया, और इससे बनाया गया कल्चर मीडिया में रख करके मेल गैमेटोफाइट। जैसे कि फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो सैक बनता है, वैसे ही साइंटिस्ट इससे मेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो सैक, मेल गैमेटोसाइट का फॉर्मेशन किया। मेल गैमेटोफाइट और मेल एम्ब्रियो सैक तो निमैक नाम के साइंटिस्ट के द्वारा ये फेनोमेना हुआ, इसलिए नाम दिया गया है निमैक फेनोमेना। सो यूजुअली आस्क्ड इन मेडिकल एग्जाम्स व्हाट इज निमैक फेनोमेना, और निमैक फेनोमेना इज एसोसिएटेड विथ। तो आप फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक का नाम सुने हैं, फीमेल एम्ब्रियो सैक सुने हैं, तो मेल एम्ब्रियो सैक भी पहली बार इसी से बनाया गया था। और दतोड़ा इनॉक्सिया के पॉलन ग्रेन से एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड बनाया गया था। अब जानते हैं इंडियन साइंटिस्ट IIRI न्यू दिल्ली, जो रिसर्च सेंटर है इंडिया का, गुहा एंड माहेश्वरी के द्वारा एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड बनाया गया। एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड, एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड फ्रॉम pollen grain of Datura inoxia. दतुड़ा इनॉक्सिया नाम के प्लांट में पहली बार एक हैप्लॉइड प्लांट का फॉर्मेशन किया गया। अब जानते हैं पॉलन ग्रेन हैप्लॉइड होता है, जो प्लांट नया बनेगा वो भी क्या होगा, हैप्लॉइड होगा। और कल्चर मीडिया में पहली बार पॉलन ग्रेन से एक नया प्लांट बनाना, आप जानते हैं जिसको कहते हैं आप टोडिपोटेंसी, कि एक सेल से आप एक प्लांट बना लेते हैं तो नाम क्या होता है, टोडिपोटेंसी। तो ये दतुड़ा इनॉक्सिया के पॉलन ग्रेन को लेकर के किया बाय गुहा एंड माहेश्वरी
गुहा एंड माहेश्वरी एट IARI न्यू दिल्ली। सो भैया क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन यूजुअली मेडिकल एग्जाम्स में आते रहते हैं। तो हम लोगों ने मेल गैमेटोफाइट की बात कर ली है। अब आ रही है बारी, जो हम लोग नेक्स्ट हेडिंग देंगे वो होगा फीमेल गैमेटोफाइट। तो नेक्स्ट क्लास में हम आपको फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में बतलाना चाहेंगे, यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो सैक। थैंक यू। आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए, देखते रहिए। कंटेंट्स इतना ज़्यादा आपको दिया जा रहा है कि आप अगर अच्छे से पढ़ें तो मेडिकल के लिए कोई भी क्वेश्चन आपके लिए एक लॉलीपॉप साबित होगा।